Okay, so okay, so ladies and gentlemen, welcome to a short, informative talk, and the title of the talk is Security Operations Center. And here the main author is, or the main speaker is Kainat Zulfikar. She's a she has joined our academy recently, and the topic which we are explaining today is about the Security Operations Center. Just give me a brief something. That is the one of the topic about the cyber security. In the cyber security, like in the network, people sits in a certain place and manage or operate a network, and that place is normally called NOC, Network Operation Center. Similarly, now the security has taken a very important role in the networking, and the people who are responsible to take care of the security measures of the network sits in the Security Operations Center. Shortly, we call, abbreviationally, we call it SOC. So the basic objective of this goal is, because here we have the PC internees along with the internees of the Cisco lab as well. So to show them different areas, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट 4 साल की डिग्री करने के बाद भी निकलता है और उसको पता नहीं होता कि मैं कहाँ पे, मेरा एरिया क्या हो सकता है. तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में you can be an attacker, like a pen tester, which is basically an attacker, or you may be even a black hat. You may be a defender. You may be a forensic expert. You may be a part of the incident response team as well. So there are multiple dimensions in the cyber security. One of them is the SOC. फर्दर इस पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि प्रेजेंटर ने इस पे बात करनी है. और अच्छी बात यह है, स्पेशली पीसी इंटर्नीज के लिए, कि इनको कल ये टॉपिक दिया गया और आज इन्होंने, बल्कि आज नहीं, रात को इन्होंने मुझे ये डॉक्यूमेंट बना के भिजवा दिया. तो मैंने जस्ट उसको एक रीड दे के इनको कहा कि जी गो हैड. इसका मतलब कम से कम इससे जो बाकी हमारे पीसी इंटर्नीज हैं या जो हमारे दूसरे जूनियर यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक आइडिया कि जी अगर कोई इस एरिया को लेता है तो उसको किस एरियाज में अपनी एक्सपर्टीज को आज से डेवलप करना है. ठीक है जी. सो आई इनवाइट हियर कायनात जुल्फिकार कि वो अगले जो भी कहना चाहती हैं, डेफिनेटली टेक अ फ्यू मिनट्स एंड और मे बी 15 to 20 मिनट में भी. तो उन आप उनसे उनकी बात सुने, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एट द एंड. इवन वी हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन. और जब वो खत्म कर लें तो देन आई विल बैक अलोंग विद कायनात एंड विल बी रिस्पोंडिंग टू योर क्वेश्चंस. ठीक है जी. सो आई रिक्वेस्ट कायनात, प्लीज टेक द सीट. Assalamu alaikum. I'm Kainaz Zulfikar. So today our topic is Security Operations Center. As sir already briefed you about this, so I think you have some sort of idea about this. Anyone who can tell me about this? Okay. What is Security Operations Center? It is basically protecting organization from cyber threats. So one who detects, analyze, and responds to potential security incidents, ensuring businesses can operate safely and security. So this is basically about the security of networks. So what I will discuss today is what is SOC analysis, what are their responsibilities and significance, and what 10 essential skills we need for this. Okay, so SOC analysis is a cybersecurity professional who works a part of team. So this play a crucial role in ensuring that organization and network
remain secure. And their responsibilities are to protect network data from potential threats. And it's also, we can say that it is create and maintain documentations, and it generate reports continuously, stay up to date and latest cybersecurity threats, trends, and defense techniques. Their significance are to protect organization. They are the first line of defense. They minimize the impact of security breaches. So we can say that SOC team is company best weapon against cyber criminals. 10 skills we need for this are threat detection and analysis, the ability to monitor, identify, and analyze security threats, to stay one step ahead of cyber attacks. इसका मतलब ये है कि मतलब हमें थ्रेट डिटेक्शन और एनालिसिस, हमारा जो मेन स्किल होना चाहिए कि हम थ्रेट को डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसको हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं. Such as malware, phishing. You know what is phishing? Anyone? Abdullah? नहीं पता? हाँ हाँ, पासवर्ड्स जो हम ईमेल्स पे पासवर्ड लगाते हैं वो समटाइम्स हैक हो जाते हैं, तो उसको हम फिशिंग कहते हैं. तो ये उसको भी प्रोटेक्ट करता है. सेकंड जो हमारे इसमें स्किल होना चाहिए वो है इंसिडेंट रिस्पांस. अगर हमारे पास मतलब कोई साइबर अटैक होता है तो उसको हम इफेक्टिवली कैसे रिस्पांस कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेसफुल. लाइक मतलब जब कोई अटैक होता है तो अक्सर बहुत से लोग मतलब स्ट्रेस में आ जाते हैं, ओ ये क्या हो गया, मैं उसमें माइंड मत करना. अच्छा ठीक है ना. तो उसको हम कैसे मतलब सेफली उसको उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, या उससे हम अपने सिस्टम को कैसे उसके डैमेज को मिनिमाइज कर सकते हैं. इसके लिए हमारे जो स्किल होना चाहिए वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स है, कि हम मतलब सही डिसीजन ले और जिससे हमारा सिस्टम भी डैमेज ना हो और हमारा मतलब जो थ्रेड्स है उससे भी मतलब प्रिवेंशन मिल जाए. इसके लिए मतलब इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जिसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए. मतलब प्रेपरेशन मीन्स कि हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर हमारे पास इंसिडेंट्स कोई साइबर अटैक आता है तो हम उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हों. मतलब काफी लोग अक्सर पैनिक हो जाते हैं कि अभी इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए. तो इसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए. तो सॉक का जो मेन मकसद होता है वो पहले से प्रिपेयर होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास ये 10 स्किल्स होते हैं. दूसरा आइडेंटिफिकेशन, कि हम उस को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि हमारे उसमें कौन सा साइबर अटैक हुआ है. कंटेनमेंट मतलब कि उसको स्प्रेड होने से भी हमें रोकना है, और जो हमारे जो रूट कोज होते हैं इंसिडेंट्स को उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं उसको भी हमने रोकना है. और दूसरा मतलब ये रिकवरी जो है, रिकवरी इसका मतलब ये है कि कुछ साइबर अटैक्स की वजह से हमारा जो अक्सर डाटा होता है वो मतलब क्या उसको कह लें डिलीट हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो उसको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं. तो रिकवरी उसके लिए यूज होता है. लास्ट पॉइंट इसका है लेसन लर्न, कि मतलब जो हमने साइबर अटैक मतलब जिससे हम गो थ्रू हुए हैं तो उससे हमने क्या सीखा है, लाइक उसको हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. कि अगर साइबर अटैक आ जाए, मतलब जो हमने उसके ऊपर जो भी हमने स्किल्स या कुछ भी उसको रोकने के लिए किया हो तो उसको हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये उसके लिए यूज होता है.
थर्ड हमारे पास जो स्किल है वो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है और इवेंट मैनेजमेंट है। ये ये क्या होता है कि ये हमें हेल्प करता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए, कि मतलब जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, एनालिसिस ऑफ लॉग डाटा होता है, उसको हम कैसे इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसको इसकी जो मेन होता है वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट ही है, कि मतलब जो हमारे सिस्टम पे अक्सर हमने सिक्योरिटीज वगैरह लगाई होते हैं, पासवर्ड्स वगैरह, तो उनको ये मैनेज करने में हेल्प करता है। नेटवर्क सिक्योरिटी फंडामेंटल्स जो है ये मॉनिटर करता है और हमारे नेटवर्क को सिक्योर रखता है। और इसमें सिक्योर नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए जो हमारे पास मेन वो है नेटवर्क सेगमेंटेशन। नेटवर्क सेगमेंटेशन में क्या होता है कि हम सेगमेंट्स बनाते हैं, लाइक हम बड़े नेटवर्क को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो अटैक्स वगैरह होते हैं वो मतलब के अटैक्स को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब साइबर अटैक्स को रिड्यूस करने के लिए हम सेगमेंटेशन करते हैं। एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट सिक्योरिटी जो होता है वो हमारे जो अपने लैपटॉप्स वगैरह होते हैं या फोन होते हैं, इनके लिए हम यूज करते हैं कि अगर साइबर अटैक्स की वजह से मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो अफेक्ट होती है, लेकिन उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं जिसके साथ वो कनेक्ट होते हैं वो भी अक्सर मतलब अफेक्ट होते हैं। तो इसके लिए हम अपने एंड पॉइंट्स पे क्या करते हैं, एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल करते हैं, जिसकी वजह से वो जो अटैक्स होते हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करते हैं और हमारे जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो उससे अफेक्ट नहीं होते। सिक्योरिटी एनालिसिस एनालिटिक्स। Security analytics is a vital capability for security operations center to understanding security issues and shielding an organization. So ये जो सिक्योरिटी एनालिटिक्स है ये क्या है, शील्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक मतलब शील्ड बनी होती है साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए। ये उसमें मतलब जो हमारे सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होते हैं उनको अफेक्ट होने से ये बचाता है। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, वैलिडेशन, रिस्पॉन्ड। तो हाइपोथेसिस क्या होता है कि जो थ्रेड्स हमारे उसको अफेक्ट करते हैं, ये मतलब ये जो होता है ये फर्स्ट पॉइंट होता है कि मतलब उनको अफेक्ट होने से हम कैसे रोक सकते हैं। दूसरा जो है डाटा कलेक्शन, जो हमारे पास जो डाटा कलेक्ट होता है उसको हम साइबर अटैक से अफेक्ट होने से कैसे रोकते हैं। वैलिडेशन जो होती है वो बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि जब साइबर अटैक्स होते हैं तो अक्सर मतलब लोग पैनिक हो जाते हैं, और मतलब पैनिक सिचुएशन में जो अच्छे डिसीजंस होते हैं जो हमें लेने होते हैं तो उसको हम वैलिडेशन कह सकते हैं, कि जिससे हमारा जो नेटवर्क है वो भी अफेक्ट ना हो और हमें अपने डिसीजन पे कोई रिग्रेट वगैरह भी ना हो कि मतलब हमें कोई और डिसीजन लेना चाहिए था। रिस्पॉन्स सबको ही पता है कि मतलब अगर कोई साइबर अटैक होता है तो उसको इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हमारा पूरा सिस्टम डैमेज हो सकता है। वर्नेबिलिटी मैनेजमेंट, ये जो है वो 7 स्किल है, और ये हमारे जो होता है आइडेंटिफाई और फिक्सिंग सिक्योरिटी वीकनेसेस को मतलब टैकल करने में हेल्प करता है। लाइक हमारे सिक्योरिटी हमारा जो एक बना होता है शील्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, जो भी हमने उसको सिक्योर करने के लिए किया होता है नेटवर्क को, तो उसमें अगर कुछ वीकनेसेस वगैरह आ जाएं, लाइक कि जिसकी वजह से साइबर अटैक आसानी से हो सकता है, तो ये उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसको मतलब ये इस स्किल को यूज करते हैं कि जिससे हमारे पास ये मतलब फ्रिक्वेंटली रिस्पॉन्स करे उसको और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अफेक्ट ना हो। 8 इसमें जो स्किल है वो कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन है, कि लाइक मतलब हम अपने जो टीम मेंबर्स होते हैं उनके साथ हम अच्छे से मतलब कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन हम दूसरी कंपनीज के उनको कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारा जो मतलब कम्युनिकेशन होती है हम अपनी टीम के साथ तो अच्छी रखते ही हैं, लेकिन हमें दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, तो ये स्किल भी इस सॉन्ग एनालिसिस में इम्पोर्टेंट है।
कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी, मतलब कंटिन्यूअस लर्निंग से इसमें ये है कि मतलब अप टू डेट, जैसे जैसे साइबर अटैक्स अपडेट होते रहते हैं, तो हमारे पास जो थ्रेड्स आते हैं वो भी अपडेट आते हैं। लाइक जो हमारे पास प्रीवियसली अटैक्स होते हैं उससे तो समहाउ जब न्यू अटैक्स होते हैं तो वो ज्यादा हैवी, या उसको कह लो मतलब एडवांस होते हैं। ठीक है, तो जैसे मतलब साइबर अटैक्स एडवांस होते हैं, तो इसी तरह हमें भी अपनी नॉलेज में इंक्रीज करना चाहिए कि हम एडवांस साइबर अटैक्स को कैसे टैकल कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मैंने स्टार्ट में बताया था कि जब हम साइबर अटैक्स होता है तो हमें मतलब अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्किल्स होते हैं उनको इसेंशियल रखना चाहिए। लाइक अटैक्स वगैरह में हमें पैनिक वगैरह नहीं होना चाहिए। स्ट्रेसफुल कंडीशन में अक्सर मतलब हम सही से उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ये मेनली हमें अपनी अच्छी रखनी चाहिए। तो ये 10 स्किल्स हमारे अंदर होने चाहिए। अगर ये 10 स्किल्स होंगे तो फिर ही हम SOC एनालिसिस को अच्छी तरह मॉनिटर, एनालाइज और सिक्योरिटी थ्रेट्स को सही से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? यस। हम्म क्या है, रिपीट करें प्लीज। तो ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये उसकी वीकनेस की वजह से होती है। जैसे मैंने बताया कि हमारी जो सिक्योरिटी होती है उसमें काफी वीकनेसेस होती हैं, जिसकी वजह से ये उस साइबर अटैक को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो डिफेंड नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटर होंगे ही होंगे। नहीं, मेरी बात है किस तरह का, किस तरीके से करोगे? ये तो आप वीकनेस की बात कर रहे हैं कि आपके पास ये किस तरह करोगे? किस जगह से सर्वर के थ्रू होते हैं। अगर आपने एक यूएसबी देखी होगी, अगर उसमें वायरस होगा तो अगर आप उस यूएसबी को अपने लैपटॉप में लगाओगे तो जाहिर सी बात है उस यूएसबी का वायरस आपके लैपटॉप में भी आएगा। रिस्क होता है, थ्रेट होता है, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस क्या है? ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूं कि आपने इस शॉर्ट टॉक से कुछ ना कुछ सीखा होगा। और ओके, तो और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इसी वजह से उम्मीद करता हूं कि आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो कि आप करना चाहेंगे। तो although I have a guest, he is from Finland और he is my student, और पिछले कई सालों से वो फिनलैंड में, और इसने अभी कुछ महीनों पहले, आपको याद होगा इलेक्ट्रिकल वालों को, कि इन्होंने आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉक भी दी थी। और अगर आए हुए तो हम इसको दोबारा भी यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एनी हाउ, क्वेश्चन किसका है जी? कौन क्वेश्चन करना चाहता है जी? ओके, मतलब वो यहाँ के मुकाबले में आपने क्वेश्चन, मैंने जैसे शुरू में कहा, क्वेश्चन ये पूछा गया कि जी इंट्रूडर किस तरह हमारे सिस्टम में इंटर हो जाता है। सिंपल आंसर ये है, although कि ये क्वेश्चन जो अभी टॉपिक चल रहा है दैट इज अबाउट द डिफेंस, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो ऑफेंस। ऑफेंस पे कौन काम कर रहा था जिसने मुझे डॉक्यूमेंट भेजा था?
आपने भेजा था। ओके, तो हम इसके बाद इनको भी यहाँ पे बिठाने की कोशिश करेंगे। अब इसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप से गुजर के लाजमी तौर पे कोई भी चीज दुनिया में 100% एक्यूरेट नहीं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर एक बिल्डिंग है तो हो सकता है कि वहां पे कोई एक दरवाजा कमजोर हो, यानी कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी उसमें होगी, क्योंकि आपका सिस्टम है जहाँ पे हजारों एप्लीकेशन चल रही हैं, सौ की तादाद में मशीन चल रही हैं। कई जगहों पे आपको मजबूरन बाहर से आने वाले को इजाजत देनी होती है। अब नेटवर्क ऐसा तो नहीं बनाना, वरना नेटवर्क कहते हैं दुनिया का सबसे सिक्योर नेटवर्क ये है कि आप अपना नेटवर्क बंद कर, यानी किसी को भी आने की इजाजत। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे सीएमएस का नेटवर्क है, आप जहां से मर्जी बैठते हैं और अपने रिकॉर्ड्स वगैरह चेक कर लेते हैं। अगर वो बस आज नेटवर्क से उसको उतार के और बंद कर दें तो दुनिया का सबसे सिक्योर सिस्टम बन जाएगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा यूटी एडमिशन आजकल कर रहा है, तो लाजमी तौर पे उन्होंने अपने आप को दुनिया को बताना है, तो इसका मतलब कि आपने आने देना है किसी को। अब लाजमी तौर पे जो जो आपका अटैकर है वो वहां पे आके किसी भी तरीके से, चाहे वो इंटरनल हो सकता है आपका एम्प्लॉई है। मैंने आज सुबह जो है फवाद को सख्त 2-3 बातें की, वो कहते हैं नन दफा गोरा। सो इट माइट बी इंटरनल और इट माइट बी एक्सटर्नल। सो वो कोशिश करता है कि कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढ ले, और वो भी एक्टिवली या पैसिवली। एक्टिवली या पैसिवली, एक्टिवली का मतलब है कि वो आपके सिस्टम के साथ इन टच होकर तो इंफॉर्मेशन निकालेगा। पैसिवली है आपके सिस्टम के साथ टच भी नहीं होगा, कोई पता नहीं चलेगा, और वो आपसे इंफॉर्मेशन निकालेगा और कोशिश करेगा कि ऐसी जगह मालूम करे जिसके जरिए वो आपको नुकसान या अपना मकसद हासिल कर सकता है। तो उसके मुख्तलिफ टूल्स हैं, उसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, जो कि मैंने कहा कि क्योंकि आपका क्वेश्चन है तो हम आपके साथ, आपका सीनियर कौन है, तो इनको हम ये टॉपिक के ये भी इस तरह के ब्रीफ टॉपिक आपको टॉक दें, उस पर भी क्वेश्चन आंसर निकलें, उसको हम डिस्कस करें, ताकि एटलीस्ट हमें पता चले कि दुनिया में सिर्फ ये नहीं है कि जो हम कोर्स में पढ़ते हैं, और शायद उनकी यूटिलिटी है भी कि नहीं, आई डोंट, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे हमें ये पता चले कि किस तरह हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, कौन से टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, किस तरह हम उससे मालूम कर सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे चल रही हैं। बैठ सिस्टम यूएस में पड़ा हुआ है, यहाँ बैठ के आपको मिसाल के तौर पे अगर ये काम कर रही है कायनात, तो कायनात यहाँ से बैठ के बताएगी कि फेसबुक के सर्वर पे ये एप्लीकेशन चल रही हैं और इनका ये वर्जन है और इनमें ये वल्नरेबिलिटीज पॉसिबल है, और फिर उनको ये एक्सप्लॉइट करेगी। मे बी ये 50 उसमें से निकाले, 50 नहीं चलेंगी तो 2 तो चली जाएंगी, एक तो चली जाएगी। तो बाय दिस वे हम सिस्टम में इंटर होते हैं, इंटर हो जाते हैं, फिर हम अपनी प्रिविलेज को इंक्रीज करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं तो एक ऑर्डिनरी यूजर के तौर पे वहां इंटर हुआ, मैं वहां के एडमिन का, मैं वहां के रूट का, मैं वहां के सुपर यूजर का पासवर्ड निकालता हूँ, एंड देन मैं उसके जरिए और अपनी प्रिविलेजेस को इंक्रीज कर लेता हूँ और काम कर सकता हूँ। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि वर्टिकल या लेटरल उस सिस्टम के अंदर फैल जाऊं, और जब सब कुछ अपना कर लेता हूं तो आखिर में अपने सारे ट्रेसेस को खत्म करता हूं। कोशिश करता हूं कि पता भी ना चले कि फवाद को के टोल इस पर कैसे शुरू। गॉट इट। रिस्क, ओके, ये तीनों तीनों डिफरेंट चीजें कि अगर हम वल्नरेबिलिटी, जैसे आपने कहा, वल्नरेबिलिटी ये होती है कि वल्नरेबिलिटी ये होती है कि उसमें कमी क्या है। मिसाल के तौर पे एक पोर्ट कभी इस्तेमाल ही नहीं की मैंने, मेरे पास तो एक सिस्टम में तकरीबन 1,30,000 पोर्ट्स हैं, मैं उसमें से सिर्फ 3 यूज करता हूं, तो मैं उन तीनों को सिक्योर करने की कोशिश करता रहूंगा, लेकिन चौथी पांचवी भी किसी वजह से मुझसे रह गई हुई है। या इवन स्विच है, स्विच में 24 पोर्ट्स हैं, इस्तेमाल में 4 कर रहा हूं, लेकिन 20 मुझसे गलती से रहे हुए हैं, ओपन रहे हुए हैं। तो दैट इज माइट बी एक्ट लाइक ए वल्नरेबिलिटी, दैट इज ए लूप होल, दैट इज ए वल्नरेबिलिटी। अब इस वल्नरेबिलिटी को यूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज कॉल्ड रिस्क। तो ये मतलब उससे रिलेटेड तो है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी यानी एक
मिसाल के तौर पे आप देखेंगे कि बाज ऐसी वनरेबिलिटीज हैं जिनकी वो फिर हम जब एनालिसिस करते हैं मुख्तलिफ तरीके हैं, उससे हम मालूम करते हैं कि किस वनरेबिलिटी का रिस्क बहुत सबसे हाई है, यानी प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत हाई है कि यूजर बाहर से बैठे हुआ इसको एक्सप्लॉइट कर जाएगा। तो आपने ये सारी चीजें और ये टास्क जो है किसने किया था कल, जो यहाँ पे कोई था जिसने पेन टेस्टिंग पे काम कुछ मुझे बताया था, उमामा ने। तो उमामा ने फिर हमें ये कर तो बताने की कोशिश करती है कि जी आपकी कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी है सिस्टम में, लेट करे 20 हैं और 20 में से नंबर 1 एक्सप्लॉइट रिस्क किसका ज्यादा है, सेकंड किसका है, थर्ड किसका है, फोर्थ किसका है, सो गॉट इट जी। तो वी हैव द अदर एक्सपर्ट हियर एज वेल, होपफुली शी एंड हर team lead will be giving you something about that as well. Ji, any other question? जी, अभी आपको इन्होंने बताया, क्योंकि मैं इनका डॉक्यूमेंट पढ़ चुका हूं, इन्होंने उसमें बताया है कि एक तो ये होता है कि आप उसको बताना चाहते हैं कि जी मैंने ये काम कर लिया है, और ताकि उसको एहसास हो जाए कि वो डेंजर में है। आप किसी अपने दुश्मन को या जो भी आपका टारगेट है, आप पे खौफ तारी करना चाहते हैं, कि उसको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे सिस्टम तक पहुंच चुका हुआ हूं, अपने आप को संभालो। लेकिन जो सीरियस वो होता है वो अपने, मैंने अभी कहा कि अपनी ट्रेसेस को उड़ा देता है ताकि पता ही ना चले। अब यही काम होता है कि जो शॉक में बैठा हुआ बंदा है, वो ट्रैफिक जो आ रही होती है वहां पे, वो उसको ऑब्जर्व करता है, और इसकी लॉग जो है वो मुख्तलिफ सर्वर्स होते हैं उनमें स्टोर हो रही होती है। तो यहाँ पे जब आप शॉक में, अभी इन्होंने उस डिटेल में नहीं बताया, शॉक में डिफरेंट टायर्स के लोग होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। तो टायर 1 का सबसे बड़ा काम ये होता है कि उस ट्रैफिक को ऑब्जर्व करता रहता है। और उस फिर जैसे इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया सेम, इन्होंने लफ्ज अपनी इसके दौरान इस्तेमाल किया SIEM। ये सोर भी इस्तेमाल कर सकती थी, ये स्प्लंक भी इस्तेमाल कर सकती थी। तो ये डिवाइसेस आपने अपने सिस्टम में लगाए होते हैं, जो कि कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर आता है तो वो आपको अलर्ट देते हैं। यू हैव टू लुक एट दीज अलर्ट्स, यू हैव टू लुक एट द लॉग्स, एंड वहां से आपको मालूम करना होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इसलिए कोई आसान टास्क ये नहीं है, इसलिए हाईली पेड है। आसान नहीं है, हाईली पेड है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, मैं देता हूँ जी। वो मैं सबके लिए दे, अब मकसद ये होता है कि एक बंदे को पूछना होता है कि जी तुम किधर हो, चाहते हो, वो आपको अपना आइडिया देता है, आप उसको फिर टास्क देते हैं कि जिस पे चलो, और फिर उसका आइडिया को सब तक फैला देते हो। यही सिस्को लैब का ऑब्जेक्टिव। जी जी, एनी वन फ्रॉम द जूनियर्स? रफी, उमामा? नहीं करना? मर्जी है आपकी। जी अब्दुल्ला, अगली कुर्बानी का वो आ रहा है, तो आप खुद ही कुछ सवाल कर लें। नहीं तो नहीं आओ जी, तो आई स्टॉप हियर। आप आके इसको रिकॉर्डिंग भी बंद कर लें, इसको भी कर दें, और रिकॉर्डिंग जो है फिर मैं पहले रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ।